Now semi-final 2. CKC Adpai taking on Sai Samarth Usgaon. Sai Samarth Usgaon winning the toss and deciding to bowl first. Of CKC Adpai, Suprat. Along with him is Ajay. And with the ball, it will be Vaibhav to start off the proceedings. 8 overs game, first overs, mandatory power play overs. Fifth over will again be the batting power play over. So here's Vaibhav to Suprat. Full toss delivery, nicely played in the covers. Straight to the field, a chance of run out. Oh, not quite. Single taken, gets off the mark with that single. There's Suprat. All the live streaming is done by tenniscricket.in on YouTube. You can be anywhere in the world. Just type there, tenniscricket.in, and type 4th All Goa Panchayat and Municipality level cricket tournament organized by Bhumika 11. We'll provide you the link if you need any. And you can see all these live games from wherever you are in the world. Just need to have some reception on your phone. In the air. And that's big. Just a mere flick of the wrist, and that's gone for 6. Half. Six over mid wicket. Oh, nicely trying to just chop it down to third man. Looking for the reverse, missed it completely. And that will be wide. Extras. Nicely played with soft hands. Gets a single. Score moves on to 10. Down the ground, in the air, fielder won't be able to stop it. Pundalik Bappa down there.
14 without loss after one. CKC Adpai. Here's Pundalik to Suprat. Felician Len delivery, played down the ground, straight to the fielder, but a fumble from him, and will just be a single. Brings Ajay on strike. Lot of firepower in this batting of CKC Adpai. All Ponda derby this. Both teams from Ponda. CKC Adpai and Usgaon. In the air, chance, fielder, gone. No matter how much you tell him, he knows only. After that dismissal of Ajay. Went for 5. It's 15. 15 for the loss of 1. Second over in progress. First 2 overs, mandatory power play overs, where 2 fielders are allowed outside the 30-yard circle. And on the 5th, it will be 3 fielders outside the 30-yard circle, which will be the batting power play. In case if you have joined just now, then this is 4th All Goa Panchayat and Municipality level cricket tournament, organized by Bhumika 11 Kanka, here at the Kumyo Morod ground, Girim. Second semi-final played between CKC Adpai and Sai Samarth Usgaon. Sai Samarth Usgaon winning the toss, deciding to bowl first. Currently 15 for the loss of 1. Nicely played. And will just be a single. Just being corrected that it is not Sai Samarth, it is Swami Samarth Usgaon. CKC Adpai. Nicely played. Lot of work for that fielder. And he will just fetch the ball from the boundary. Welcome runs for Suprat and his team. Score moves on to 20. Looking for the reverse, missed it completely. He's on the floor, and it's dot delivery to end the over. After completion of 2, it's 20. Just 5, in fact 6 runs coming from it. It's 20 for the loss of 1 after 2 overs. CKC Adpai. Was going at 10 runs per over. CKC Adpai. Up and over.
keeping the fielder at covers busy. Will just be a single. Score moves to 21. 21 for the loss of 1. Definitely will be eyeing to get to around 80-90 on the scorecard. That's big from Suprat. Fielder is a mere spectator. It's gone over his head for 6. Score move. After that, humongous hit down the ground by Suprat. That will be wide. Extras. Score moves to 28. Officials in this particular game, Vaman Mayekar and Rajesh Signapurkar, both very experienced umpires. Also partnered by our television umpire, Shusharan Dabolkar, aka Babu Dabolkar. Flat batted. No proper connection. Will just pick up a single. Suprat. Score moves to 29. Winner to take home rupees 1 lakh plus that beautiful trophy. Runners up will get rupees 50,000 plus trophy. Semi-finalists to be awarded also some cash prize and trophies. Trying to pull that one, missing it completely. Chance of run under the bowler's end. No, not quite. Not collecting it cleanly. Runs given at the bat, gets off the mark with that. In fact, it's his third single. Score moves to 30. Nicely played with soft hands. Will just pick up a single. Score moves to 31. 31 for the loss of 1. This is the third over in progress. Neck and neck at the moment, with getting the boundaries at regular intervals and getting the singles and doubles freely. No risk taken. Lets that one go, and that will be dot delivery to end the over. After completion of 3, it's 31. 31 for 1 after completion of 3 overs. CKC Adpe. Given the ball yet again. 31 for the loss of 1 after completion of 3 overs. 4th over in progress in this batting of CKC Adpe. Lets it go, and that will be wide. Extras. One team already into the finals. That was Isha Adventures Vasco. One-sided affair that against the team bosses Nora. Nicely flicked. And will just be a single. Unless and until it's a fumble. No, just taking a single. Score moves to 32. Still a lot of batting power to come. We have score moves to 33. Pritham Sheth also in the ranks. Full toss. Pulled away on the bounce, and that's gone for 4. That's big. Down the ground, in the air. Fielder will take it easily. Down the throat of Avi. And it's Someshwar who is heading back to the pavilion.
Seems to be all right. Gets a single, gets off the mark with that single. Pritam Shet gets off the mark. Score moves to 38. For the loss of 2 wickets. CKC Adpai in and around 70-80 would be a really good total. Nicely bowled. Again, send back. So dot delivery to end the over after completion of 4 at the halfway stage. It's 38 for the loss of 2. It will be change in voice. It will be Ashok Naik sir in the commentary box. और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है प्रीतम सेठ और प्रीतम सेठ के साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर है सुप्रत। 2 छक्के 1 चौका अब तक सुप्रत के बल्लेबाजी में। इस बार थोड़ा सा हवा में शॉट गली पर नो मैच लैंड में थर्ड मैन पर फील्डर और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल के साथ दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में। इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 40 रनों पर। 2 विकेट पर 40 रन। सुप्रत नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्ट्राइक पर प्रीतम सेठ और बॉलिंग बार पर अभी। पहला मुकाबला टोटल 40 का एक तरफी मैच। फिर से कट किया इस बार थर्ड मैन की तरफ और गेंद निकली बाउंड्री लाइन की तरफ। देखना होगा गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री पर 4 रन के लिए। चार रन मिल गए स्कोर के खाते में। प्रीतम सेठ स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाले अगली गेंद का एक बैठक शॉट खेलना चाहते थे ऑन साइड पर गेंद चली गई ऑफ स्टंप पर। अब एक बिल्कुल अच्छी लाइन पर गेंदबाजी हो रही है। ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा मौका ऑन साइड पर नहीं दे रहे हैं। अभी अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर। थोड़ी सी परेशानी, तेज गेंद करने की कोशिश, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। इस वाइड बॉल के साथ एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। सेमीफाइनल का मुकाबला मैदान पर स्वामी समर्थ उसगांव क्रिकेट टीम टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई गेंदबाजी करती हुई और छोटी गेंद इस बार पुल किया ऑन साइड पर, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ प्रीतम के बल्लेबाजी में। सीके से अड़पई क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए मिला 1 रन सिंगल बनता हुआ और जो कि स्कोर के खाते में। 5वां ओवर जारी है मैच का। आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी। और थोड़ा सा हवा में शॉट, पॉइंट पर फील्डर, कैच छूटा। पॉइंट पर एक मौका निकला था कैच का, लेकिन कैच छूटा। सुप्रत को मिला एक मौका और 1 रन इस बीच में पूरा हुआ। 5 ओवर समाप्त हुए और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 47 रन 2 विकेट पर। सीकेसी अड़पई क्रिकेट टीम क्या 80 से आगे निकलेगी, 90-95 पर जाएगी? आने वाला समय बताएगा। बॉलिंग में परिवर्तन, प्रवीण नाइक आ चुके हैं उर्फ पापा बॉलिंग बार पर।
ओवर पेच उड़ाया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ सफलता मिलती हुई तीसरा विकेट चला गया। डीजे गौरेश मैदान पर आउट होकर वापस 23 रन बनाकर सुब्रत मैदान पर, प्रीतम सेठ सफलता मिलती हुई। नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर गौरेश नाइक। फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है मैदान पर, जो ऑफसाइड पर लॉन्ग अप, डीप लॉन्ग अप, फुल टॉस गेंद स्विप किया, इस बार ऑन साइड पर, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ लंबी दौड़ लगाई, गेंद पहले निकली 4 रन के लिए, बाउंड्री लाइन से बाहर, 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए सीके से अड़पाई क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे हुए। विकेट पर प्रवीण नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, और सामने बैटर है गौरेश नाइक। इस बार मिड विकेट पर गेंद हवा में, लेकिन फील्डर से दूर है। और बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, सुंदर थ्रो, गेंद को कलेक्ट किया, गेंद को थ्रो किया, 52 टोटल, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, 1 रन गौरेश के खाते में। स्ट्राइक पर आते हुए प्रीतम सेठ, स्कोर रुका हुआ 52, लॉस ऑफ 3 विकेट, 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बैठक शॉट खेलना चाहते थे, गेंद निकली शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, एक सिंगल, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 53 रनों पर, 53, लॉस ऑफ 3 विकेट। टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का गेंदबाजी का फैसला स्वामी समर्थ उसगांव क्रिकेट टीम का। सेमीफाइनल का मुकाबला मैदान पर फिर से थोड़ा सा एक हाथ से, और देखना होगा फील्डर जब तक गेंद को उठाते, फील्ड करते, अच्छा थ्रो, सुंदर थ्रो, सिर्फ 1 ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। शायद दूसरा रन बन सकता था, लेकिन नहीं निकले दोनों बल्लेबाज, जोखिम नहीं ली, 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। खेल अभी भी जारी है मैदान पर, यह छठा ओवर आने वाले 2 ओवर का खेल इस पहले इनिंग का बाकी। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला इस बार, लेकिन फिर से एक बार सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। तो और 1 ओवर यानी 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 55, लॉस ऑफ 3 विकेट, 55 रन 3 विकेट पर 6 ओवर के समाप्ति के बाद।
साईराज आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। 7वें ओवर की शुरुआत होती हुई और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है प्रीतम सेठ। नॉन स्ट्राइकर इन पर गौरेश नाइक। 6 ओवर समाप्त हुए और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है 55, 55 रन 3 विकेट पर। फुल टॉस इस बार घुमा दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर है मौजूद और एक सिर्फ सिंगल ही बन गया स्कोर के खाते में। एक फुल टॉस गेंद थी लेकिन उतना फायदा नहीं उठा पाए प्रीतम सेठ और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 56 लॉस ऑफ 3 विकेट। 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दूर दूर जमाएगी फील्ड मैदान पर स्वामी समर्थ उसगांव क्रिकेट टीम की। विकेट के पीछे विकेट के पर अभिषेक और इस बार मिड विकेट पर गेंद चली गई डीप मिड विकेट पर सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। है वो कैच निश्चित रूप से परेशान कर रहा है स्वामी समर्थ उसगांव क्रिकेट टीम को। और बहुत अच्छी गेंद इस बार यॉर्कर लेन की सम्मानजनक खेला। एक सिंगल मिड विकेट पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 63 रनों पर 63 लॉस ऑफ 3 विकेट। साईराज गेंदबाजी कर रहे हैं सामने प्रीतम सेठ स्ट्राइक पर सामना करेंगे। उनकी गेंदबाजी का खेल जारी है मैदान पर 7वें ओवर का। कमेंट्री बॉक्स में हम चर्चा कर रहे थे 80-90 के टोटल की। देखना होगा सीके से अड़पई क्रिकेट टीम कितने रनों पर जाकर रुकती है। 63 लॉस ऑफ 3 विकेट। 7th ओवर इन प्रोग्रेस। ओह ये बेहतरीन शॉट डीप फाइन लेग पर डीप लॉन्ग लेग पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। प्रीतम सेठ के बल्ले से 6 रन के लिए। डीजे के खाते में और इन 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा 69 रनों पर। एक ठीक ठाक दिखाई देती हुई सीके से अड़पई क्रिकेट टीम। 8 ओवर का मैच है और 7वां ओवर जारी है। ये मिस टाइम शॉट, क्या मौका मिलेगा कैच का? जी नहीं, बिल्कुल गेंद थोड़ी सी दूर थी और जब तक गेंद को फील्ड करते लेकिन थोड़ी सी देरी हो गई थ्रो के साथ और मिले 2 रन एक बार फिर से स्कोर के खाते में। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 71 टोटल लॉस ऑफ 3 विकेट। बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाजों की और से स्लॉग ओवर में जिस तरह से बड़े शॉट चाहिए वो बनते हुए मैदान पर दिखाई देते हुए। और देखना होगा साईराज एक बार फिर से अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। बढ़िया शॉट मिड ऑन पर फील्डर रनआउट का मौका था लेकिन मिस फील्डिंग पुंडलिक उर्फ बाप्पा। रनआउट का एक आसान सा मौका था लेकिन मिस फील्डिंग और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक अपने क्रीज में सुरक्षित। एक सिंगल के साथ 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 7वें ओवर के बाद टोटल स्कोर 72 लॉस ऑफ 3 विकेट। लास्ट ओवर टू गो। डीजे प्रीतम सेठ क्या 82, 85, 90
देखना देखना होगा क्या होता है आखिरी ओवर में। एक और से 2 शॉट चाहिए सीके से अड़पाई क्रिकेट टीम को अभी भी, तो एक और से एक अच्छा ओवर अभी भी चाहिए। एक 82-85 का टोटल रोकने पर। फुल टॉस बिल्कुल एक ऋषभ पंत के अंदाज में गेंद चलेगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, पहले गेंद पर एक लोअर फुल टॉस लेग स्टंप पर 4 रन के लिए पर प्रीतम सेठ को स्ट्राइक पर। इस बार उड़ाया मिड विकेट पर गगन चुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। वहीं पर लगभग जा रही है और एक बार उड़ाया, फिर से एक बार मिड विकेट पर हवाई फायर प्रीतम सेठ के बल्ले से ये लगा सिक्सर। इस पर खुद के व्यक्तिगत प्रीतम सेठ, टीम का स्कोर 88। मिले हेलीकॉप्टर गेंद हवा में, शॉट फाइन लेग पर, लेकिन कैरी नहीं हुई। बिल्कुल एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में 1 रन के साथ। खुद के व्यक्तिगत 36 पर प्रीतम सेठ, टीम का स्कोर 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथे विकेट के लिए बड़ी साझेदारी बड़ी मैदान पर, क्योंकि 3 विकेट पर स्कोर था 47 रन, लेकिन वहीं से लेकर जो कैच छूटा गौरेश का वो थोड़ा महंगा साबित हुआ स्वामी समर्थ उसगांव क्रिकेट टीम को। अब टर्म से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल बना स्कोर में। चलिए सीके से अड़पाई पहुंची 90 पर। शायद जो बल्लेबाजी के लिए जब उतर रही थी तो मन में सोच थी टीम की कि कम से कम एक 85-90 के आसपास जाना पड़ेगा, और वहीं पर पहुंचे है। लेकिन अभी भी खेल बाकी है, शायद 2 बड़े शॉट 100 से आगे भी जा सकती है। फुल टॉस, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। एक सिंगल स्कोर के खाते में। तो लास्ट बॉल टू गो। स्विप के इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में। जब तक डिप्स के और लेग पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, अच्छा थ्रो, आउट। तो प्रीतम सेठ आउट हुए इस आखिरी गेंद पर। 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टॉस जीता स्वामी समर्थ उसगांव क्रिकेट टीम ने फील्डिंग करने का फैसला, बल्लेबाजी को मौका दिया सीके से अड़पाई क्रिकेट टीम को। एक बहुत ही बेहतरीन इनिंग खेली प्रीतम सेठ ने। उससे पहले 23 जो 23 रन बनाए थे सुब्रत ने, और उसके बाद प्रीतम सेठ ने अपने टीम को एक अच्छे मोड़ पर खड़ा कर दिया। टोटल 92 और टारगेट है 93 का। तो प्रीतम सेठ का खुद का व्यक्तिगत स्कोर है 37। 2 बल्लेबाजों ने बड़ी बल्लेबाजी की, 37 37 रन बनाए प्रीतम सेठ ने। गौरेश ने भी अच्छा साथ दिया, एक चौका लगाया, छक्का लगाया, 14 रन बनाए, और उससे पहले सुब्रत ने बनाए 23 रन। देखना होगा 93 का टारगेट है। 8 ओवर का मुकाबला है, किस तरह से मुकाबला होता है दोनों के बीच में। फाइनल में कौन प्रवेश करती है, ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम के साथ किसका मुकाबला होता है, ये जानकारी एक बार फिर से। छोटा सा ब्रेक, कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते हैं। आइए आगे की आवाज श्याम कलंगुटकर की।
the CKC Adpai. 92 runs scored in their 8 overs. Brilliant bit of batting from Pritham Sheth, 37, and Suprat with 23. Yes, Vaibhav to Abhishek. Straight away trying to go over the top. No proper connection. Will just be a single. Gets a bit of bat on it. Gets off the mark with that single. Team winning will be meeting the Isha Adventures Vasco in that big final at 3 o'clock today evening. Winner to take home rupees 1 lakh plus that big trophy, which is sponsored by Durgesh Karapurkar in the late memory of Srimati Sundarbai Govind Karapurkar, plus cash prize of rupees 1 lakh. Madan on strike for the first time, requiring 93 to win in 8 overs. Now requiring 92. Full toss. In fact, that's a no ball. And will just trickle into the boundary. It's gone for 4. That's a no ball as well. So this will be a free hit. So this is a free hit now. And you just can't change the field as the same batsman is on strike. Unless and until this strike is changed, then only you can change the field. Free hit delivery. Again, a bit forward, but this time really well stopped. Excellent bit of effort. And that will be just a couple of runs. He came a bit forward. Oh, that's a no ball as well. Above the waist height. And another free hit coming up. Score moves on to 9. So both the umpires are having a look, having a discussion, and definitely will be telling each other that 2 deliveries have been bowled both over waist height. Dangerous beamers, and might be the bowler will have to get his cap back and he'll be fielding at some position now. Surely will be doing that, the umpire. Or is it given a warning? No. Yes, there you go. Umpire has given him the cap and he won't be bowling anymore in this particular game. So the CKC Adpai will have to find a new bowler now from somewhere. Need to bowl this complete over as well as need to get one more over done. Bit of discussion, bit of team meeting in the middle. As your premier opening bowler has been sent off the park. Not sent off the park, but he's been restricted in bowling. 2 no balls. So this will be a free hit and it will be Vijay trying to finish off this over. Score moves on to 9. And this will be a free hit. 9 runs have been scored.
Only a single taken. Then it was a no ball, which was hit for a boundary. Then again a no ball. 2 runs were taken. Free hit time. And Vijay from the far end. Outside the off stump, and that will be a dot delivery. Bowling it outside the off stump, and that's a much better line to be bowling. Legal delivery, nevertheless. Changing the field on every particular delivery. Taking a lot of time. Time given. You need to complete those quota of 8 overs within the stipulated time. If not, then an extra fielder will be inside the 30-yard circle at the second last or the last over. In the air, chance. Vijay under it. And will take it easily. That's the first casualty of Pravin. 9 for 1 in pursuit of 93 runs. Swami Samarthusgaon against the CKC Adpai. And there goes Pravin in the air, and it will clear that man quite comfortably. Gets off the mark with a maximum. What a shot that was from Pravin. Sweeping that one over the square leg fence for 6. Again, this time, reverse. And the fielder will just fetch the ball from the boundary. That's gone for 4. So taking full advantage of this restriction in the power play over. Score moves on to 19 with that boundary. Again, this time no proper timing. Down to the fielder at deep square leg will just be a single. So after completion of 1, it's 20. 20 for 1 after 1 over. Swami Samarthusgaon needing another 73 runs to win in 7 overs.
And he's been stopped by Pravin. 20 for 1 after completion of the first over. This is also a power play over where two fielders outside the 30-yard circle. Man at deep mid-wicket and man at square leg on the boundary rope, whereas the rest inside the 30 yards. Reverse swept and on the full. And again into the ascendancy is Pravin, piercing the gap between that backed point and shot third. In fact, the gully fielder, another boundary. Score moves on to 24. This time again trying to replicate the same shot, missed. That gap between that gully and the backed point fielder has been just been bit closed off. Maybe they were standing at around 10-15 meters earlier, now standing at 7-8 meters. Again reverse and again missed. Frustrated with himself is Pravin. Maybe that extra fielder has been brought inside the 30-yard circle. Why don't you go over the top, over the cover boundary? Modern day batsmen, modern day problems. Once you get one hit on the similar kind of a shot, missing. Definitely Sham will be telling himself, if this is the ploy, first one went for a boundary, next three were full and straight. This one definitely I'll be trying to uproot the stumps. Maybe Yorker or something is coming. Maybe one firing onto the leg stump. Again, this time trying to take the conventional sweep, missing it completely. That was heading onto the stumps. Big game coming up in the evening. Big finale of this fourth Bhumika 11 trophy. Isha Adventures Vasco already into the final. Either of these two will be meeting them at 3 o'clock in the evening. No proper timing. Maybe might have just slipped out of his hands. The bat lost a grip. Single taken, just 5 runs coming from it after completion of 2. It's 25 for 1. From the far end, 25 for the loss of 1 after 2. 93 the target required. Here's Gaurish to Pravin. That's gone through and that will be wide. Extras. Big final tonight as well in Chennai. KKR taking on Sunrisers Hyderabad. In the air, chance, field getting underneath. And will be all dropped. Easy chance has been shelled. You just don't want to drop that big man, Pravin. Chance provided to him. And he will definitely go bonkers from this point on. Easy chance put down.
Fielder coming in from the cover region and dropping a sitter. Brings Abhishek on strike. He just faced the single delivery that was on the very first delivery of this game. And since then, he's been watching his partners. Madan went early, then came in Pravin. Deep back to square, mid wicket, long on, long off, and sweeper cover on the fence. Just trying to cut that one. Dot delivery. In pursuit of 93 runs, you need to get a partnership going. And definitely these two men are the perfect ingredients for that run chase. Reverse, no proper timing, will just be a single. Third over in progress. All these trophies have been specially minted by the Trophy House. Talking about another tournament, 6th All Goa Taluka level tournament organized by Awesome Boys in Kalangut. That's gone, that's big wicket. Doesn't cost much of that drop chance. That fielder at covers will be feeling a sigh of relief after this wicket of Pravin. It's 27 for 2. Meeting Isha Adventures Vasco in the final. Swing, misses it completely. Dot delivery. Swing again, missed again. Excellent over coming to an end. Just 3 runs coming from it. It's 27. Of after completion of 3 overs. Swami Samarthusgaon talking about the batting of CKC Adpai. Pritam Sheth with 37. Suprat with 23. And Gauresh also supporting him with 14 in the end. Talking about the bowling, well, Pundalik was the pick of the bowlers. Picked up 2 wickets for 16 runs. And rest of the bowlers, they also chipped in with some wickets. And as far as the batting of Swami Samarthusgaon is concerned, currently 28 for the loss of 2 after 3. In change in bowling, it will be Ajay Halgekar from the far end. Similar kind of action to Jasprit Bumrah. He'll be up against Abhishek.
66 more required. 65 required in 30 deliveries. Here's Ajay from the far end. It's missed. That's a dot delivery. Abhishek just needs to get his timing right. Needs to play out the overs. Needs to get the target done. Unless and until he's out there, definitely his team will be feeling that big man Abhi can also come in and get some boundaries. It's not timing it properly. Down to deep, back to the square. Will just be a single. Score moves to 29. Fourth over in progress. Fifth over will be the batting power play over. Are they waiting for that power play over? Or they just trying to get 1 or 2 boundaries every over from here on? 64 required now. 64 in 28 deliveries. That's big. Swatted it. Over mid wicket for 6. That's a humongous hit. Over mid wicket fence. A maximum score moves on to 35. And maybe our DJ is... DJ Ajay. Abhay Salgaonkar, President of Ball Boy Association as well. All the way from Karnataka. Full toss delivery. Again down to deep mid wicket. And will just be a single. Single taken. Score moves on to 36. Especially got this DJ from Karnataka for the remuneration of rupees 800 per day. He got him from the Mapsa market in the morning, including transport and food and accommodation as well. Jokes apart. In the air. Chance. Field getting underneath. Oh, and it's been dropped, shelled on his own brother's bowling. 2 runs taken. Score moves to 38. Previously a drop chance of Praveen. He didn't last too long. Now it is Abhishek who has been dropped. And let's see if he can capitalize on that drop chance. A let-off has been given to him. Ajay again from the far end. In the air, and Suprat will take it easily. So drop chance doesn't cost much. It's Abhishek. For the loss of 3. Abhishek has just departed. 55 required in 24 deliveries for Swami Samarth Usgaon. Well, it was 38
for 3 at the same stage for CKC Adpa as well. So needing another 55 in 24 deliveries for Swami Samardh Usgaon. What it will be? It will be straight from the hands and thoughts of Ashok Naik sir in the commentary box. थैंक यू श्याम। दोनों टीम बिल्कुल 4 ओवर में 38 रन पर थे। पहले बल्लेबाजी में सीकेसी अड़पई, वो भी 38 रन 4 ओवर के बाद। अब स्वामी समर्थ उसगांव क्रिकेट टीम, ये भी 4 ओवर के बाद 38। बैटिंग पावर प्ले का इशारा, गेंदबाजी में परिवर्तन और नए बल्लेबाज मैदान पर, न्यू बैटर मैदान पर और बॉलिंग बार पर श्याम। इस बार ऑन साइड पर मिस टाइम शॉट, विकेट के पर खेलेगा, आसान सा मौका, सफलता मिलती हुई शाम को। चौथा विकेट चला गया। डीजे को जीतने के लिए और एक बड़ा ओवर चाहिए स्वामी समर्थ उसगांव क्रिकेट टीम के लिए इस मैच में 18, 20, 22 रनों का, क्योंकि विकेट एक के बाद एक जरूर वापस हो रही है स्वामी समर्थ उसगांव क्रिकेट टीम। न्यू बैटर मैदान पर पुंडलिक बप्पा। 38 लॉस ऑफ 4 विकेट, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। शुरुआत अच्छी रही थी प्रवीण नाइक की, लेकिन उसके बाद उन्होंने ज्यादा तो गेंदे डॉट खेली, मेरे ख्याल से रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश उनकी, लगातार डॉट गेंदे खेलते गए और थोड़ा सा दबाव बल्लेबाजी पर निश्चित रूप से अब बढ़ चुका है। देखना होगा किस तरह से मुकाबला दोनों के बीच में यह समाप्त होता है। तो स्ट्राइक पर न्यू बैटर पुंडलिक, अपने बॉलिंग मार्ग पर शाम अगली गेंद लेकर, स्कोर रुका हुआ 38 पर 4 विकेट पर। चौथा यह बैटिंग पावर प्ले का ओवर, जो 5वां ओवर मैच का। तेज गेंद ऑफ स्टंप से बाहर खेला था, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर और सामने नए बल्लेबाज आ चुके हैं पुंडलिक, जो सामना करते हुए अगली गेंद का। अच्छी गेंद इस बार ड्राइव किया बॉलर के पास से, मिडऑफ पर फील्डर अपना खाता खोला। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 39 पर। पुंडलिक का साथ देते हुए स्ट्राइक पर अभी आने वाले इस ओवर के बाद 3 ओवर बाकी है और कहीं ना कहीं आखिरी ओवर जो 20 रन का बना वो भी थोड़ा सा महंगा साबित हुआ। पुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर, फिर से एक डॉट गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। मध्यम गति तेज गेंदबाज टीम की ओर से सीकेसी अड़पाई क्रिकेट टीम एक अच्छा टोटल खड़ा कर दिया। 92 रनों का सुप्रयत्न बनाई, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। प्रीतम सेठ ने एक अच्छी इनिंग खेली, गौरेश नाइक ने अच्छा साथ दिया और ये तीनों ने मिलकर 92 रन आखिरी ओवर में बने। 20, टारगेट 93 का। लोअर फुल टॉस ऑन साइड पर खेला, मिड विकेट पर फील्डर, एक सिंगल अभी के खाते में, 1 रन टीम के स्कोर में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा टोटल 40 पर। 40 रन 4 विकेट पर 8 रन के साथ लगभग रन बनाती हुई मैदान पर स्वामी समर्थ उसगांव क्रिकेट टीम। ओवर पिच ऑन साइड पर मिड विकेट पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट के पर के हाथों में। एक अच्छे ओवर की समाप्ति, जिस ओवर में विकेट के साथ रनों पर रोक लगा दी। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 3 ओवर 18 गेंदों का खेल मैच का अभी भी बाकी और 18 गेंदों में 53 रन मैच को जीतने के लिए। 18 चेंडू 53 धावा सामना जिंकण्यासाठी।
ओवर मैच को मजबूत कर देगी, मैच में पकड़ मजबूत कर देगी। और एक अगर 18-20 रनों का ओवर मैच में वापस से शॉर्ट आर्म पोल, लेकिन गेंद खड़ी हो गई मिड विकेट पर। फील्डर एक आसान सा मौका मिला और सफलता मिलती हुई अभी आउट होकर वापस 5वां विकेट चला गया स्वामी समर्थ उस। अच्छी गेंद, एक सिंगल बनेगा स्कोर में। आते आते अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ से केदार ने। स्कोर पहुंचा 41, 52 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल बाकी मैच का। थोड़ा सा रन रेट बढ़ चुका है मैदान पर और सामने पुंडलिक बप्पा स्ट्राइक पर। और बाहरी किनारा विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा और एक कामयाबी मिलती हुई इस ओवर में। स्वामी समर्थ उसगांव क्रिकेट टीम लगभग संकट में मैदान पर दिखाई देती हुई। डीजे सुरेश, बहुत अच्छा ओवर, 2 सफलता इस ओवर में अब तक अपने टीम को दिलाते हुए गौरेश नाइक अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। 6ठा विकेट वापस पुंडलिक के रूप में। ऑन साइड पर फिर से मौका, क्या कैच का मौका मिलेगा? जी बिल्कुल, कोशिश बढ़िया रही थी, 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में। कोशिश तो बहुत अच्छी रही थी, दाद देनी पड़ेगी इस फील्डिंग को, लेकिन एक मुश्किल सा मौका था। मिले 2 रन बड़ी देर के बाद स्कोर के खाते में, लेकिन सिंगल डबल से अब मुकाबला हाथों से बिल्कुल छूटता जाएगा। बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, चौके छक्के लगाने पड़ेंगे स्वामी समर्थ उसगांव क्रिकेट टीम को, अगर 93 रनों का जो टोटल चेस करना है। ऑन साइड पर फिर से हवा में, स्क्वायर लेग पर फील्डर, फिर से मौका गवा दिया। और एक बार जब तक गेंद थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में, 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। लगातार 2 मौके निकले थे। पहला मुकाबला थोड़ा सा मुश्किल था, ये मौका बन सकता था, होना चाहिए था, लेकिन पकड़ नहीं पाए और मिले 2 रन स्कोर में। फिर से ऑन साइड पर लगातार कोशिश ऑन साइड पर बल्लेबाज की, और शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते हैं। एक सिंगल, ओवर की समाप्ति हुई। और एक ओवर यानी 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 6 ओवर के बाद टोटल स्कोर 46, लॉस ऑफ 6 विकेट। 46 रन 6 विकेट पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद।
ओवर का खेल 12 गेंदों का बाकी है। 12 डिलीवरी 47 रन, 12 गेंदों में 47 रन, 12 चेंडूत 47 धावा। गेंदबाजी में परिवर्तन, प्रीतम सेठ आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 11 गेंदों का खेल अभी भी बाकी मैच का, और जीतने के लिए चाहिए 47 रन। अल्टी पल्टी इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, कोई फील्डर मौजूद नहीं, और 4 रन के लिए गेंद चली गई। बड़ी देर के बाद चौका निकलता हुआ बल्लेबाजी में, बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद। 4 रन के लिए 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए स्वामी समर्थ उसगांव क्रिकेट टीम के। गेंदों और रनों का फासला बढ़ चुका है। शायद फिर से कोशिश सफल होकर ऑन साइड पर खेलने की। गेंद चली गई विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, और धीरे धीरे टारगेट अब बढ़ता हुआ दिखाई देता हुआ। जो 7वां ओवर आने वाला ओवर होगा, जो आखिरी ओवर। फिर से स्विच हिट, नो मैच लैंड में डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, और थ्रो जब तक पहुंचता तब तक 2 रन पूरे किए। 2 रन के साथ 52 रन टोटल स्कोर आगे बढ़ा 52। मिस टाइम शॉट, आसान सा मौका फॉलो थ्रू में, और 7वां विकेट चला गया। डीजे विकेट चला गया मैदान पर। भूमिका 11 बिरला कांड का 4था पर्व, ऑल गोवा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी टीम हिस्सा लेती हुई इस प्रतियोगिता में आज का आखिरी दिन। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम। यह मुकाबला मैदान पर दूसरा सेमीफाइनल का, पहला बिल्कुल एक तरफी रहा। उम्मीद थी दूसरा मुकाबला एक बहुत बेहतरीन मैच होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। विकेट हो गई मेरे ख्याल से शुरू से ही लेकर स्वामी समर्थ उसगांव क्रिकेट टीम ने, और एक नए बल्लेबाज मैदान पर केदार का साथ देने के लिए। जय प्रीतम सेठ अपने बॉलिंग मार्ग पर एक सफलता दिलाते हुए खेल जारी है 7वें ओवर का। हेलीकॉप्टर हवा में, लॉन्ग अप बाउंड्री पर, लेकिन फील्डर है मौजूद। आते आते एक सिंगल बना दिया, अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ, और इस सिंगल के साथ खेल समाप्त होता हुआ 7वें ओवर का। 7 ओवर और 7 ओवर के बाद टोटल 53। आखिरी ओवर 6 गेंदे, और मैच को जीतने के लिए चाहिए 6 गेंदों में 40 रन। लास्ट ओवर, और मैच को जीतने के लिए चाहिए 40 रन। बिल्कुल टाइम आउट, इसलिए एक जो कि फील्डर और जो कि भीतर जाएगा सर्कल पर। अंपायर का इशारा हो चुका है, और 7वें आ चुके हैं इस आखिरी ओवर में। अंतिम ओवर का खेल बाकी है। 6 छक्के लगे तो भी मुश्किल है इस मैच में। जो पहला मैच रहा था उसी तरह से ये दूसरा मैच में भी थोड़ा सा एक तरफी दिखाई दिया मैदान पर। छोटी गेंद, शॉर्ट आर्म बॉल, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। 6 रन मिले स्कोर में, 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 59, 59 रनों पर। शुरू में बहुत ही अभिषेक के साथ, मदन के साथ अक्षय, प्रवीण, अभी ये विकेट बिल्कुल जल्दी कोई स्वामी समर्थ उसगांव क्रिकेट टीम ने।
ऑफ स्टंप से बाहर वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 60 रनों पर। बेहतरीन शॉट, लेकिन फील्डर है मौजूद और जब तक मिड विकेट पर आते प्रीतम सेट गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने इसी बीच में, और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 61, 61 रन टोटल 7 विकेट पर। आखिरी ओवर का खेल जारी है मैच का। सतवेश अपने बॉलिंग बार पर, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर तेज गेंद पीछा किया था, कट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बस मैच की औपचारिकता बाकी। मैन ऑफ द मैच के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इस मैच में। एक लोअर फुल टॉस ऑन साइड पर मिड विकेट पर फील्डर, फिर से एक बार सिंगल, एक रन और मिलता हुआ स्कोर के खाते में। खेल दूसरे सेमीफाइनल का समाप्ति की और बल्लेबाजी में सुब्रत ने बनाए थे 23 रन, प्रीतम सेठ ने बनाए 37 रन, 14 रन बनाए थे गौरेश नाइक ने। फिर से एक बार शॉट ऑन पुल, मिड विकेट पर फील्डर, एक रन और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। मालूम हो चुका है बिल्कुल जो टीम को, खिलाड़ियों को, दर्शकों को कि मैच का नतीजा क्या होगा, कौन जीतेगा, फाइनल में कौन प्रवेश करेगा। सतवेश एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, गेंदबाजी भी बिल्कुल अच्छी रही, खास करके गौरेश ने बहुत अच्छा स्पेल किया, 3 विकेट चटकाए, 2 ओवर का कोटा उनका 8 रन देकर। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, और मुकाबला समाप्त होता हुआ मैदान पर। तो एक फिर से एक बड़ी जीत हासिल होती हुई सीके से अड़पई क्रिकेट टीम। अभिनंदन आपका फाइनल में प्रवेश करते हुए, और रुकना पड़ेगा स्वामी समर्थ उसगांव। आने वाले टूर्नामेंट के लिए आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए जुड़ जाते हैं मैन ऑफ द मैच इस मैच के लिए।